So welcome guys. Today I will teach you an important application of greedy technique, that is single source shortest path. So what is shortest path and what is the meaning of single source shortest path? We will see all the details, and basically there are two algorithms which is used for this purpose. So those are Dijkstra's algorithm and Bellman-Ford algorithm. So in this particular lecture we will cover Dijkstra's algorithm, and next to that lecture we will see Bellman-Ford algorithm. And those who want to learn some other applications of greedy technique, they can refer my previous videos. So this is the last application of greedy technique. So let us see. First of all, what is shortest path? Okay. So what is the meaning of shortest path? So let us understand carefully. Uh, तो आपको एक ग्राफ गिवन है, डायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें वेट्स भी हैं और डायरेक्शंस भी हैं. तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? पाथ इज अ बेसिकली पाथ इज व्हाट? पाथ इज कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ व्हाट? वर्टिसेस एंड एजेस. लाइक V1 से आप V2 मूव हुए, V2 से V3, V3 से V4 अप टू Vn. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 V2 दिस इज एन एज, आफ्टर दैट V2 V3, तो ये वर्टिसेस का कॉम्बिनेशन, ये भी एक एज हुआ, V3 V4 एंड अप टू सो एंड सो फोर्थ Vn-1 to Vn. So this particular thing is nothing but a path. We can say this is a path. Now what is the meaning of shortest path? So let us suppose D of u comma v. So इसको हम denote कर रहे हैं कि ये shortest path है from vertex u to vertex v. Okay. So this is, we are assuming this is the shortest path. So now D of u comma v can be written as infinity. What is infinity? अगर कोई पाथ ही ना हो, when from u to v no path exist, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी. और ऑल पॉसिबल पाथ फ्रॉम u to v, तो हम कहाँ से लेंगे? u से लेके v तक के सारे पाथ्स, और उनमें मिनिमम वेट किसका निकल के आ रहा है उस पाथ में. ठीक है, उन पाथ में मिनिमम वेट, तो जो भी मिनिमम वेट निकल के आएगा फ्रॉम u to v, सारे पॉसिबल पाथ्स में से जो मिनिमम वेट होगा, दैट विल बी अवर शॉर्टेस्ट पाथ. Okay, so this is just an introductory or some written part. Now let us see what is the meaning. So some important notes first of all. So what are the notes? First is shortest path from u to v not possible if at all no path is available from u to v. So what is the meaning of that? This is, let us suppose u, and after that this is your v. Okay, v1, this is your, let us suppose v2, and after that there is a gap, and let us suppose this is v. Okay, so this is the first point. This is the indication of first point, that no path exists from u to v. u to v में कोई path नहीं है, that's why there is no shortest path. Okay, that's why we can say the shortest path from u to v is going to be infinite. Okay, there is no shortest path. Now next important point is we don't get shortest path from u to v if the given graph contain negative weight cycle. For example, let us suppose this is the u, and after that v1, and let us suppose this is v2, and let us suppose this is v3, and finally it is v. Okay, so we are interested to find the shortest path from u to v, and there is a negative weight cycle. So what is that? Let me show you. Let us suppose the distance is 1 2, this is 3, and this is 4. So there is a another, let us suppose v4. Okay, so let us suppose here it is 5, and it is what? -10. Let us suppose negative weight cycle is there. Now अगर हम इसमें फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. अगर हम इसमें फाइंड करेंगे, u से v का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पाथ. तो यहाँ u से v1 1 है, यहाँ 2 है. ठीक है,
फिर आफ्टर दैट अगर हम ये करेंगे 3 और 4 ये सारा ऐड कर देंगे तो 1 2 3 4 इज गोइंग टू बी 10, बट ये नेगेटिव बिट साइकिल है। तो हम अगर यहाँ ऑब्जर्व करें केयरफुली, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि 5 और रिपीट करेंगे अगर 5 माइनस 10 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 माइनस 10 इज गोइंग टू बी माइनस 5। तो यहाँ 3 ऑलरेडी था, 3 माइनस 5 इज गोइंग टू बी माइनस 2। अगेन माइनस 5 माइनस 2 में ऐड करेंगे, so minus 5 and minus 2 is minus 7, okay। So this meaning of that is means you will not get a, so here the shortest path is what, here first of all it is 3, then after 3 minus 2, then after minus 2 minus 7, then after minus 7 minus 12, this will go to infinity, okay। That's why no path exists, we don't get any shortest path। That's why we can say the distance from or shortest path from u to v कितना होगा, infinity, that is also, okay। So this is the implication of this second one। सिंपल, अगर कोई पाथ नहीं है ना, सो वी कैन नॉट गो। और अगर पाथ है बट नेगेटिव वेट साइकिल है, यहाँ पे नेगेटिव वेट साइकिल बन रहा है ना, 5 अगर इसको रिपीट करेंगे तो 5 माइनस 10 माइनस 5, फिर अगेन माइनस 5 माइनस 5, तो लेस हमें मिनिमम पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन ईच एंड एवरी टाइम वी विल गेट अगेन अ नेक्स्ट मिनिमम, ओके। नाउ दिस इज अ गिवन ग्राफ, कनेक्ट डायरेक्टेड ग्राफ है, ये वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है। तो अगर इस वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ में मैं बात करूँ, मुझे एस से फाइंड करना है। लेट अस सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम एस। तो एस टू, फॉर एग्जांपल सपोज एस टू एस अगर मैं बोलूँ तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एस टू एस, एस टू एस इज 0, ठीक है। देन अगर मैं एस से ए बात करता हूँ, व्हाट इज द डिस्टेंस एस टू ए। तो देखिए एस टू एस तो 0 होगा, एस टू ए अगर बात करें तो यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ क्या डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ एस टू ए कितना होगा डिस्टेंस, 3, ओके। अगर हम यहाँ पे एस टू सी बात करते हैं, ठीक है, और लेट अस सपोज सिंगल उस साइड में देख लेते हैं, एस टू बी अगर हम करते हैं तो यहाँ 3 है और एस टू ए 3 है, और 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1, ओके। तो एस टू बी कितना हो जाएगा, एस टू बी इज माइनस 1। नाउ एस टू जी अगर हम देखते हैं तो एस टू जी एज ऑफ नाउ हमें दिख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, एस टू जी में 3 माइनस 4 माइनस 1, और माइनस 1 प्लस 4 करोगे तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। बट लेट अस सपोज बिकॉज कई सारे पाथ्स हैं एस टू जी तक के, और देखते हैं हम। जैसे हमने एस टू सी देखना है सबसे पहले, एस टू सी, तो एस टू सी अगर हम मूव करते हैं तो एस टू सी में हमें कितना मिला डिस्टेंस, यहाँ पे मिला हमें 5, ठीक है। फिर यहाँ नेगेटिव वेज साइकिल है, हम रिपीट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो 6 माइनस 3 करेंगे तो ये 3 मिलेगा, बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ 5 प्लस 3 8 होगा, तो मिनिमम कितना मिला हमें, मिनिमम यहाँ 5 मिला। तो यहाँ एस टू सी में कितना हुआ, एस टू सी में जो है हमारा, दैट इज नथिंग बट 5, ओके। नाउ एस टू डी देखते हैं, एस टू डी, एस टू डी में हम अगर ऑब्जर्व करते हैं, सो एस टू सी कितना है 5, और यहाँ डी तक अगर जाएंगे तो 5 प्लस 6 11। बट अगर हम इसको रिपीट करें यहाँ से, तो 11 माइनस 3 8, 8 प्लस 6 इज 14, 14 में तो मतलब बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो मिनिमम कितना हुआ, 5 प्लस 6 इज व्हाट, 11। तो यहाँ मिनिमम कितना होगा, दिस इज व्हाट, 11। तो एस टू डी का जो निकल के आया शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज 11, है ना। नाउ आगे देखते हैं एस टू जी, अगर यहाँ ऑब्जर्व करें तो यहाँ 11 है, और 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। तो 19 और 3 में 3 मिनिमम है, तो अभी 3 रहेगा, ठीक है। अब ये पाथ और फॉलो करवाते हैं, ठीक है, दिस पाथ। सो लेट अस टेक दिस पाथ। नाउ एस टू ई, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, एस टू ई। एस टू ई में हमें दिख रहा है, एस टू ई में डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो हम अज्यूम करते हैं 2, बट यहाँ रिपीट भी कर सकते हैं, रिपीट करके कुछ लेस आ रहा है क्या, यस। देखते हैं 3 और माइनस 6, 3 माइनस 6 मीन्स माइनस 3। तो यहाँ 2 में माइनस 3 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 1। फिर माइनस 1 में, माइनस 1 में फिर ये माइनस 3 का साइकिल है, माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 4।
देन अगेन -3 तो -7, अगेन -3, तो इस तरीके से हम बोले माइनस इनफाइनाइट मीन्स देयर इज नो, बिकॉज ड्यू टू नेगेटिव एज साइकिल, तो इस एस टू ई का डिस्टेंस वी कैन नॉट फाइंड, दैट्स व्हाई इट इज इन्फिनिटी। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम उसका डिस्टेंस फाइंड नहीं कर पाएंगे एस टू ई का। नाउ सेम केस आई थिंक फ्रॉम एस टू एफ, ओके एस टू एफ। तो एस टू एफ में देखेंगे यहाँ लेट अस सपोज यहाँ मिनिमम ही कितना है, माइनस में जा रहा है, तो आप यहाँ भी कितना हो जाएगा, बिकॉज ये इसी के आगे है तो यहाँ भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी। और आफ्टर दिस अगर हम यहाँ पे भी देखें एस टू एफ कितना है, इन्फिनिटी। गेटिंग माई पॉइंट? इन्फिनिटी कैसे आ रहा है कि यहाँ आपका -7 माइनस, तो मिनिमम आते जा रहा है, मिनिमम में अगर 3 ऐड करेंगे, फिर अगर रिपीट कर दें यहाँ पे जैसे आप सिंपली यहाँ देखें ऑब्जर्व करें, तो 2 + 3 लेट अस सपोज 5, फिर 5 में यहाँ -6 + 3 करेंगे, तो मीन्स -3 और ऐड करना है, ठीक है। तो 5 - 3 होगा कितना, -2। सेम केस आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग। सो फर्स्ट टाइम इट इज़ व्हाट 5, फिर 5 के बाद -3 की साइकिल रिपीट होगी, so 5 - 3 is 2, फिर 2 - 3 is -1, -1 - 3 is -4, and similarly up to -infinity. So that's why it is also minus infinity, or there is no path exist, minimum path. Same case here from, because यहाँ पे infinity है f पे, तो उसके बाद आप 7 और ऐड करेंगे तो that is also infinity। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि नेगेटिव इन्फिनिटी और 3 में क्या है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी विल बी द आंसर, ओके, मीन्स दिस इज नॉट द केस। So as to G is also no path. No path means no shortest path. Path is exist, but there is no shortest path. That's why it is infinite. Okay, now next हम देखते हैं, next देखते हैं। तो हमें S से, let us suppose हमें S से देखना है S to H, ठीक है। ये भी इस ग्राफ का पार्ट है, ये कम्प्लीटली एक ग्राफ है। तो S to H कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ इसका कितना होगा, दिस इज इन्फिनिटी, and S to I is infinity and S to J is also infinity। तो S to I infinity होगा, S to J भी क्या होगा आपका, infinity। गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स इस ग्राफ में आपको कुछ पर्टिकुलर वर्टेक्स तक सोर्स से S से आपका शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम पाथ आप फाइंड कर पा रहे हैं, डिस्टेंस, है ना, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये क्यों हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हमने देखे कि अगर कोई पाथ ही ना हो किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में, तो उसमें क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे एस टू एच के बीच में पाथ नहीं है, तो एस टू एच का मिनिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, नो पाथ। और एस टू अगर हम फॉर एग्जांपल किसी नेगेटिव बेस साइकिल में देखने की कोशिश करें, लाइक एस टू ई, एस टू एफ, है ना, और एस टू जी, तो इनमें क्या आएगा, क्योंकि नेगेटिव बेस साइकिल। Okay, so this is about shortest path. Now, single source shortest path. So what is the meaning of single source shortest path? So let us understand. सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स आपका सोर्स सिंगल है और आपको उस सिंगल सोर्स से सारे रिमेनिंग वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। जैसे प्रीवियस केस में हमने एस से सभी डिस्टेंस, सभी वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया था। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो मीन्स फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम गिवन सोर्स टू ऑल अदर remaining vertices, okay, finding shortest path from single source from the given source to all other remaining vertices. There are basically two algorithms, Dijkstra's algorithm and Bell-Minford algorithm. So in this lecture or in this video we will cover Dijkstra's algorithm. So now let us move to Dijkstra's algorithm. So we will see problematically, then after doing certain problems, some problems, हम उसका एल्गोरिथम देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स ए टू ऑल अदर रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ए को हमने सोर्स अज्यूम किया है, सो दिस इज अज्यूम दैट ए इज व्हाट, ए इज द सोर्स, सो सोर्स इज व्हाट, दिस इज द सोर्स। सोर्स से सभी रिमेनिंग वर्टिसेस का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए let me draw one more diagram similar to that। A and B and C, D
ए से बी कितना है, ए से बी है 10, ए से बी है 10, यहाँ पर है 2, दिस इज 7 and this is what, this is 9, this is 8, and this is 3, this is 3, and this is again 3. So from here to C is 3, I think over 2 remaining है ना, so 1 and 4. So this is from B to C, from B to C 1, and from C to B it is 4. Okay, now हम shortest distance find करते हैं. So observe carefully. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हम यहाँ वर्टेक्स लिख लेते हैं A, देन B, देन C, देन D एंड देन E. ठीक है, इनिशियली हम सभी का डिस्टेंस क्या अज्यूम कर लेते हैं, इन्फिनिटी. ओके, ये इनिशियलाइजेशन है कि सभी वर्टेक्स का मिनिमम डिस्टेंस हमने इन्फिनिटी अज्यूम किया, और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ए से, बिकॉज ए सोर्स, तो ए का डिस्टेंस क्या हमने अज्यूम किया, 0. ठीक है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी. तो यहाँ तक जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन. दिस पार्ट इज इनिशियलाइजेशन. एल्गोरिथमिकली अगर हम बात करते हैं, इनिशियलाइजेशन इज वेरी सिंपल स्टेप. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले इन्फिनिटी सभी वर्टेक्स का मिनिमम जो है वो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि सोर्स से सभी वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी. ओके, एंड इनिशियली हमने इस इन्फिनिटी को किस में कन्वर्ट किया, 0 में स्टार्ट, क्योंकि ये सोर्स वर्टेक्स है. फिर इसमें मिनिमम हमको क्या मिला, मिनिमम हमको मिला ए. तो ए मिला, तो हमने यहाँ किसको रिलैक्स किया, ये रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन. तो किसको रिलैक्स किया हमने, ए को रिलैक्स किया. ठीक है, ए को रिलैक्स किया. तो ए को रिलैक्स किया, और ए से रिमेनिंग का डिस्टेंस कितना है, ए से बी पे 10 है, तो 10 तो है ना लेस है इन्फिनिटी से, तो यहाँ 10 हो जाएगा. और ए से सी का कितना है, सी का इन्फिनिटी था बट अभी 3 हो जाएगा. ए से बी 10 हो जाएगा, तो ये 0, ये इस तरीके से बॉक्स में रखेंगे, मीन्स ये रिलैक्स हो चुका है. देन बी का कितना है, 10 है, और सी का कितना है, 3 है, और रिमेनिंग पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो दोज आर इन्फिनिटी. नाउ नेक्स्ट मिनिमम क्या मिला हमें, नेक्स्ट मिनिमम मिला सी, तो हमने सी को रिलैक्स किया. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, रिलैक्स सी को रिलैक्स किया. ठीक है, तो ए रिलैक्स ऑलरेडी हुआ है. अब हम देखते हैं कि सी से कहाँ कहाँ लिंक है. तो सी से ऑब्जर्व करिए केयरफुली, सी से आपका बी पर भी लिंक है, तो यहाँ से 4 के थ्रू है, तो 3 ऑलरेडी था, 4 यहाँ, तो 3 और 4 7. इसका डिस्टेंस था मिनिमम 10, तो 7 अभी आया, तो 7 लेस है, तो यहाँ अपडेट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, 10 इन दिस केस, इंस्टेड ऑफ 10 नाउ इट इज 7. ओके, और यही सी से यहाँ इन्फिनिटी था, तो अब कितना हो जाएगा, ये 3 ऑलरेडी था, 3 यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 6. ठीक है, और सी से डी पर भी गए हैं, तो ऑलरेडी पहले इन्फिनिटी था, 3 सी तक का है, और सी से 8 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 11. 11 इज लेस, तो मीन्स आपका सी रिलैक्स हो चुका है. ठीक है, और सी के बाद बी का डिस्टेंस कितना हुआ, 7, एंड डी का हुआ आपका 11, और ई का आपका हुआ है 6. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम इज 6. तो ई को रिलैक्स करेंगे आप. ठीक है, तो आपने किया रिलैक्स ई, तो ई को रिलैक्स करेंगे, लेकिन उसके पहले वेट अपडेट करेंगे अगर कोई मिनिमम निकल के आ रहा है. तो ई से केवल और केवल कहाँ पे गया हुआ है, अगर आप ऑब्जर्व करें, ई से
तो एक लिंक है वो भी यहाँ गया हुआ है। तो ई तक का ऑलरेडी कितना है 6 है ना 6, और अगर इसमें 9 ऐड करेंगे तो डी का मिनिमम था 11, तो 6 प्लस 9 हो जाएगा 15, तो 15 तो मोर है, ऑलरेडी 11 इज लेस, तो नो चेंजेस है ना। तो मीन्स सेम रहेगा आपका ई रिलैक्स हो गया, रिमेनिंग आर सेम। तो मीन्स ये आपका 0 है, ये आपका 7 है, ये आपका 3 है, एंड दिस इज 11, एंड ये आपका ई रिलैक्स हो चुका है 6। ना नेक्स्ट मिनिमम में क्या मिला, नेक्स्ट मिनिमम मिला 7। तो हमने किसको रिलैक्स किया, रिलैक्स किया बी को, रिलैक्स किया हमने बी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, हमें नो इशू एट ऑल, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल क्या देखना है, रिमेनिंग जो है, तो डी बी से डी तक का लिंक है क्या, तो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो बी से डी तक का लिंक है, यस है ना। तो डी का ऑलरेडी कितना है, डी का, यस ये है डी, बी से डी तक का लिंक है 2, डी का ऑलरेडी कितना है 11, और यहाँ पे कितना है बी का 7, अगर 7 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 ऑलरेडी लेस है, तो 9 लेस होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे, अपडेट करेंगे किसमें 9, तो यहाँ अपडेट हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। तो नेक्स्ट रिलैक्स किसको करेंगे, रिलैक्स करेंगे, नेक्स्ट रिलैक्सेशन होगा डी का, ठीक है। तो फाइनली जो हमें डिस्टेंस मिली वो हमें क्या मिला, सीक्वेंस क्या मिला हमें, लेट मी राइट इन डिफरेंट कलर देन इट इज विजिबल। So vertex sequence, vertex sequence in Dijkstra's algorithm, Dijkstra's algorithm क्या मिला हमें, पहले ए सी ई बी टी, तो हमें मिला ए सी ई बी एंड डी, और डिस्टेंस हमें मिला ए से ए मिला हमें कितना, ए से ए मिला हमें 0, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है। ए से हमको बी मिला, ए से सी, ए टू डी एंड ए टू ई, सो वर्टेक्स पे लिखे हुए हैं डिस्टेंस, और अदरवाइज जो सर्किल की है रिलैक्स की है उन पर भी लिखे हुए हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा बी का कितना है, बी का 7 है, यहाँ देखिए यहाँ दिख रहा है बी का 7 है, और सी का कितना है 3 है, 7 3 9 एंड 6, 7 3 9 6, तो यहाँ पे है 7 3 9 एंड 6, और ये आप यहाँ भी देख सकते हैं वर्टेक्स पे लिखे हुए 7 3 9 एंड 6। सो दिस इज अबाउट द डायस्ट्रास एल्गोरिथम। तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे वर्टेक्स लिए और वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एक मिन हीप क्रिएट किया हमने, जिसमें पहले इनिशियलाइजेशन किया इन्फिनिटी सारे वर्टेक्स का, और फिर उसका एडजेसेंट, जिस तरीके से हम प्रिम्स एल्गोरिथम कर रहे थे सेम फील्ड आया, ठीक है। प्रिम्स एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग स्पैनिंग ट्रीज है ना। नाउ लेट अस डू फॉर दिस आल्सो, तो यहाँ मैं इसी में कर देता हूँ, shortest path from S to all other remaining vertices, तो this S is what source। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है, टेबुलर फॉर्मेट में इस तरीके से। तो यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे हम, वर्टेक्स, तो S T Y X एंड दिस इज Z। इनिशियली सबका डिस्टेंस क्या करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे, वेरी सिंपल प्रोसेस, इन्फिनिटी करेंगे, और सोर्स का क्या कर देंगे, सोर्स का 0, सोर्स का 0, रिमेनिंग इज इन्फिनिटी। ओके, दीज आर द इनिशियलाइजेशन। ओके,
तो इनिशियलाइजेशन में ये इन्फिनिटी था, बाद में इसको ज़ीरो किया, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, और ये भी क्या है, इन्फिनिटी। ओके, फिर देन रिलैक्स किसको करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस किसका मिला हमें, मिनिमम डिस्टेंस मिला एस का, तो हमने रिलैक्स किया एस का। ठीक है, तो यहाँ रिलैक्सेशन लिख देता हूँ मैं, रिलैक्सेशन इसको किया पहले एस को, तो यहाँ एस रिलैक्स हुआ, तो एस रिलैक्स हुआ, तो एस से डिस्टेंस देखेंगे, तो एस से यहाँ डायरेक्टली लिंक कहाँ कहाँ है, एस से दो जगह है, एस से यहाँ पे एक तो टी पर गया है तो इन्फिनिटी था, बट अब ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो एस से टी और वाई पे 10 और 5 हो जाएगा, एस से टी और वाई पे 10 और 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड रिमेनिंग इज इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। नेक्स्ट मिनिमम हमें क्या मिला, नेक्स्ट मिनिमम मिला हमें वाई, सो ये 5। तो हमने किसको रिलैक्स किया, रिलैक्स किया हमने वाई को। तो अब हम y से देखेंगे डिस्टेंस t, x और z का। तो y से t का डिस्टेंस ऑब्जर्व करिए, y से t का डिस्टेंस, तो ये 2 है, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 7, और यहाँ 10 था, तो 7 मिल गया हमें लेस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 7। और y से t का मिला हमें 7, तो हम लिख देते हैं पहले, y से t हमें मिला 7, और y से x और z है क्या, ये z है, y से z 5 था, तो 2, 5 to 7, यस, चेंज कर देंगे इसको 7, मिनिमम मिला। तो y से z तक हमें कितना मिल गया, 7, और y से x देयर इज नो। ओके, नाउ नेक्स्ट मिनिमम हम कुछ भी ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ऑल आर सेम। तो हमें क्या लेना है फिर, नेक्स्ट हम मिनिमम ले लेते हैं ये, तो हमने t को रिलैक्स किया इसके बाद। ठीक है, इसको रिलैक्स किया, ठीक है, तो t को रिलैक्स करेंगे, तो t से x और z का देखना है हमें, तो हम t से देखेंगे x का, तो यहाँ ऑलरेडी 7 है, 7 + 1 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा, चेंज होके 8 हो जाएगा। ठीक है, और t से z तक का, तो देर इज़ नो पाथ, सो z का कितना ही रहेगा, 7, तो 8 हो जाएगा, और 7, तो यहाँ t से x तक का हो जाएगा 8, और t से z तक का रहेगा 7। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिनिमम हमें क्या मिला, नेक्स्ट मिनिमम मिला हमें z, तो यहाँ हमने z को कंसिडर किया, तो रिलैक्स किया z को, तो z से x तक का डिस्टेंस देख लेते हैं, z से x तक का है, यहाँ 7 था, 7 और 6 13, बट ये ऑलरेडी स्मॉल है, तो नो नीड ऑफ चेंज है ना। तो यहाँ आपका फाइनली यहाँ 8 रहा, और ये हो गया होगा, तो फाइनली रिलैक्स इसको कर देंगे आप 8। ओके, सो दिस इज योर मिन हीप, एंड मिन हीप इज ओवर। सो फाइनली रिलैक्स इसको करेंगे आप x। ओके, तो अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, सीक्वेंस ऑफ vertices found in Dijkstra's algorithm, क्या सीक्वेंस फाउंड हुआ, S, then Y, then T, then Z, and then X. Okay, so X, S, Y, T, Z, and X, and distances or minimum what shortest path क्या होगा, S से S तक का हो जाएगा आपका 0, S से T तक का, ये देखिए T पे मार्क है 7, तो ये 7 हो जाएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ पे 7। S से Y अगर आप देखेंगे, सो व्हाट अबाउट S से Y, 5, सो इट इज़ 5, और S से अगर आप X देखेंगे, और S से Z, सो S to X is 8, और Z is 7, so 8 and 7, 8 and 7.
Okay, 07587. So 07587. Getting my point? So this is about Dijkstra's algorithm, and so now let us quickly see this question also. तो इसमें output the sequence of vertices identified by the Dijkstra's algorithm when algorithm starts at vertex A. A से start करना है, ठीक है, और remaining vertices पे sequence बताना है Dijkstra से. Output the sequence of vertices in the shortest path from A to E. A to E का बताना है. And what is the cost of shortest path from A to E? Means ultimately source is what? A. तो हम इसको एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं. तो पहले ए बी सी डी ई इनिशियली सबके वेट्स इन्फिनिटी और ए को हम करेंगे जीरो. तो ये इनिशियलाइजेशन हुआ. तो फर्स्ट रिलैक्स्ड एलिमेंट क्या हुआ? ए को रिलैक्स किया हमने. तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया? ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. सबको हमने इन्फिनिटी रखा. इन्फिनिटी. दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी. इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी. ओके. नाउ ए को हमने क्या किया? ए को हमने चेंज किया जीरो पे, इनिशियलाइजेशन. फिर ए से हम देखेंगे. ए से रिलैक्स किया ए को. तो ए से कहाँ कहाँ डायरेक्ट लिंक है? बी पे 6 हो जाएगा. ए से बी 6 और ए से सी इज 90 एंड ए टू ई. ए टू ई इज 70. So BCE 690 70. BCE 690 690 and this is 70. And remaining is what? Remaining is infinity. Okay. Now next minimum is what? Next minimum is B. तो हम B को ऑब्जर्व करेंगे. तो B को हमने रिलैक्स किया है यहाँ पे. B. तो B से हम चेक करेंगे C D E F. तो B से C D E F देखेंगे. तो B से D तक है 40. बी से डी तक 6 ऑलरेडी है. 41. तो 47 हो जाएगा. तो दिस इज 47. तो बी टू डी 47. लेट मी राइट बी टू डी 47. और बी से सी नो एज. सो इट इज 90 ओनली. सो इट इज 90 ओनली. एंड बी टू ई. बी टू ई नो डायरेक्ट एज. तो 90 ही रहेगा. सॉरी 70 रहेगा. इट इज 70 नॉट 90. तो बी टू ई 70 and B to F. And B to F is infinity. So there is no direct link from B to F. B to F there is no direct link. Okay. Now next minimum is what? Next minimum हमको मिला 47. 47 is what? 47 is D. तो हम next किसको रिलैक्स करेंगे? नेक्स्ट हम D को रिलैक्स करेंगे. तो यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट क्या हुआ? रिलैक्स D. तो D से कहाँ कहाँ देखना है? C, E और F. D से C, E, F. तो डी से अगर हम सी देखते हैं, यस 12 है. तो यहाँ 47 और 12 कितना हो जाएगा? 59. तो दिस इज 59. तो डी से सी हो जाएगा 59. डी से सी इज 59. डी से ई और एफ. तो डी से ई का कोई लिंक नहीं है. डी से एफ का कोई लिंक नहीं है. तो वो रिमेनिंग एज इट इज रहेंगे. तो इट इज 70 एंड इन्फिनिटी. ओके. Next minimum element is what? 59. 59 means which vertex will relax? C. तो C को relax मिला. तो remaining क्या है? E और F. तो C से E और C से F देखना है. C से E. तो C से E, yes, there is a link 10. तो 59 and 10 is what? 69. So ये 70 है. तो ये change हो जाएगा 69. तो C से E हो गया 69. सी से ई हो गया 69. और सी से एफ. सो सी टू एफ देर इज नो लिंक. ओके, नो प्रॉब्लम.
तो f क्या रहेगा, इन्फिनिटी, f इज योर इन्फिनिटी. नाउ नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट इज व्हाट, दिस इज e. तो e को रिलैक्स करेंगे हम, तो यहाँ हमने किसको रिलैक्स किया, e को. e को रिलैक्स किया तो e से f तक का देखेंगे हम. नाउ e टू f, तो e से f, यस दिस इज 15, 69 यहाँ है और 15 यहाँ है, 69 एंड 15 इज 84, तो दिस विल बिकम 84. तो यहाँ 84 हो जाएगा, तो c से f इज 84. नाउ दिस इज द ओनली एलिमेंट विच इज मिनिमम, तो यहाँ इसके बाद क्या आ जाएगा, f. ठीक है. फाइनली दिस डायस्ट्रेस एल्गोरिथम इज ओवर. तो क्वेश्चन वन बाय वन, आउटपुट द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस आइडेंटिफाइड बाय द डायस्ट्रेस एल्गोरिथम व्हेन एल्गोरिथम स्टार्ट्स फ्रॉम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए बी डी सी ई एफ, ए बी डी सी ई एफ, ए बी डी सी ई एंड एफ. नाउ आउटपुट द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस इन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू ई. ए टू ई में क्या मिला आपको, ए टू ई में sequence of vertices in the shortest path from A to E. तो A की B, C and D. A to E. What is that is B, C and D. B, D and C. So it is B, D, C. What is the cost of the shortest path from A to E? So A to E, A to E. So what is the shortest distance? This is 84. Okay, so A to E is 84. तो A to E 84 कहाँ से आ रहा है, बी डी सी ई के थ्रू, बी डी सी ई के थ्रू. तो B 6, D 47 and बी डी C, so this is 59 and this is E, so this is 60. So what is the shortest distance? It is this is what, 84, not 84, E, B to A to E, it is 69. Okay, so A to E is, what is the distance, 60. So this is the distance. So let me draw. Shortest distance from A to E. Okay, so I hope that you got the concept. Now algorithm. So what is the algorithm? Same thing as we did in the Prim's algorithm. For each vertex V belongs to V, U belongs to V, d of distance of S to V is infinity, so this will take some sort of order of V time for vertices, and this is some constant time, and this is again what, this is again order of V time. Q create कर रहे हैं हम V vertex से, so this is again, this step will again take order of V time. Now till Q is not empty, Q जब तक empty नहीं होता है तो ये कितने टाइम्स रन होगा, V टाइम्स. मिनिमम एक्सट्रैक्ट करना है तो मिनिमम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिन ही विल टेक लॉग ऑफ V, एंड दिस इज मिनिमम मिला तो हमने उसको हमारा डिस्टेंस में इंक्लूड किया. ठीक है, और जो भी U हमें मिला मिनिमम, उसके सारे एडजेसेंट देखेंगे, तो ये जो एडजेसेंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एडजेसेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सभी पे एडजेसेंट हो, तो एडजेसेंट इन वर्स्ट केस में भी दिस इज V माइनस 1. ठीक है, एडजेसेंट निकला x, तो अगर S से x तक का डिस्टेंस ग्रेटर है हमारे S से U तक का और U से x तक के वेट. ठीक है, मतलब करेंटली जिस नोड से हम चेक कर रहे हैं उस नोड से न्यू नोड तक का वेट और प्लस करंट नोड का डिस्टेंस, अगर ये मिनिमम मिला तो हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे. सो दिस की इज व्हाट, दिस इज डिक्रीज की ऑपरेशन, डिक्रीज की ऑपरेशन. तो डिक्रीज किया हमने, डिक्रीज किया मतलब एक एलिमेंट डिलीट किया, सो दिस इज अगेन लॉग V. ओके, तो अगर हम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केयरफुली ऑब्जर्व करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ V
or simply we can write v plus v plus the, what is v, this is v plus v, और ये v times let me write it v times, और इस v times में क्या आएगा, this log v and v into log, so this is log v and plus v into log v. Now multiply all the things, so you will get v plus v plus v log v plus v square log v. And for dense graph, dense graph means worst case, so v square is equals to what, e. So finally this step will become v plus v plus v log v plus e log v. So the maximum part is what, maximum part is this is the maximum. So what is the time complexity, time complexity for this is order of v plus e log v, or in general e log v, है ना, because ages in most of the cases ages may be greater. Okay, so this or order of e log v. So this is the time complexity uh, using min heap. So this is the time complexity using min heap, or otherwise if you use Fibonacci heap, so that will be different. So using Fibonacci heap, using Fibonacci heap, तो यूजिंग फिबोनाची हीप में जो अमर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट है ना, अमर्टाइज्ड एनालिसिस होता है, उसमें ये जो डिक्रीज की ऑपरेशन है ये कांस्टेंट टाइम लेता है. ओके, सो डिक्रीज की विल टेक कांस्टेंट टाइम, तो अगर डिक्रीज की कांस्टेंट टाइम लेगा तो ये लॉग वी यहाँ एलिमिनेट हो सकता है, तो ये वी स्क्वायर में लॉग वी एलिमिनेट हो जाएगा, दिस विल रिमेन ई एंड वन ई प्लस वी लॉग, सो दिस इज नथिंग बट ई plus v log v. So this will be the time complexity. So this is the time complexity for Dijkstra's algorithm using min heap or binary heap. This is using min heap, using binary heap या min heap, or otherwise using Fibonacci. Now let us do one more problem. Consider the following graph. So this is the given graph, and some question is given. When Dijkstra's algorithm is applied to the on the above graph starting from vertex A, it computes the shortest distance. So these are options. So let us solve this. So A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, A, A, B, C, D, E, F, G and H. Okay, so let us solve this quickly. Initially all the elements are infinite due to the initial condition. सारे के सारे elements क्या होंगे, infinite, तो ये सारे elements infinite हो जाएंगे. Then after that initial हमने starting from A, तो A को हमें 0 करना पड़ेगा, remaining is infinite, so this is infinite, infinite and infinite, infinite and this is also infinite. Okay, now relaxation part. तो यहाँ minimum क्या मिला हमें, minimum is A, तो यहाँ रिलैक्सेशन लिखता हूँ मैं, रिलैक्सेशन, तो फर्स्ट रिलैक्स कौन हुआ, ए, तो ए से अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ए से कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ओनली वन प्लेस, ए टू, सो इनिशियली ऑल आर इनफाइनाइट, इनिशियली ऑल आर इनफाइनाइट, and in the initialization step source will be 0,
ए से कहाँ तक एप्लीकेबल है, ए से यू कैन ओनली गो टू बी, तो ए से बी 1 हो गया तो दिस विल बी चेंजेस टू 1, ए से बी 1 होगा, बाकी सारे एज इट इज, ए से बी 1 बाकी एज इट इज, सो इन्फिनिटी 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 एंड इन्फिनिटी। तो ए से बी हम, बी इज द नेक्स्ट मिनिमम, तो रिलैक्स इसको करेंगे, बी को करेंगे, तो जब बी रिलैक्स हुआ यहाँ पे, तो बी से आपका कहाँ कहाँ डिस्टेंस है देखते हैं, कवर करते हैं। बी से हमारा 2 प्लेसेस है ना, बी से हमारा ई पर है तो 1 -3, तो यहाँ -2 हो जाएगा, -2 इज मिनिमम, -2, और यहाँ 2 है तो 1 एंड 2 इज 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3। तो बी से C3 E-2, C3 E-2, and remaining is what? Remaining is infinite, 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 infinite. So what is next minimum? Next minimum is E. तो यहाँ पे रिलैक्स कौन होगा नेक्स्ट? नेक्स्ट रिलैक्स्ड एलिमेंट इज E. तो यहाँ E से हम देखेंगे CD, तो E से CD देखते हैं, सो E से CD, देयर इज नो CD, ओनली F है ना, तो E से केवल एक ही है F पे, सो -2 + 2, सो दिस विल बी 0, so E to F, this will become 0 and remaining is as it is, so it is 3, infinity and infinity and infinity. Now what is the next minimum? Next minimum value is going to be F, तो next जो relaxation होगा that will be for F, F के लिए रिलैक्स किया, तो F को रिलैक्स करेंगे तो CD चेक करते हैं, F से CD, तो F से केवल एक ही लिंक गया है, दैट इज फॉर G, तो यहाँ 0 + 3 ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 3, F से G 3 होगा, रिमेनिंग एज इट इज, F से G हो जाएगा आपका 3 एंड रिमेनिंग एज इट इज, रिमेनिंग एज इट इज मीन्स दिस इज 3 एंड दिस इज infinity and this is again, so next element this is 3, तो C रिलैक्स हुआ, C को रिलैक्स किया, तो C से हम कहाँ देखेंगे, D पे देखते हैं, G पे और H पे, C से पहले D, तो C से D, यस दिस इज 3 + 3 is 6, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6, तो C से D हो जाएगा 6, और C से H हो जाएगा आपका 3 - 5 विच इज -2, ओके, सो C से D 6, D 6 and H is -2, और remaining as it is, yes, remaining is as it is, so remaining is this 3. Now what is the next minimum? Next minimum is this -2, so -2 means H, so next minimum, next वर्टेक्स कौन रिलैक्स होगा, H, so H से हम D और G दो जगह देखना, H से D और G, सो H से केवल G पे जा रहे हैं, D पे जा नहीं रहे, सो -2 + 2 विच इज 0, तो 0 लेस है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा 0, तो H to G हो जाएगा 0, H to G हो जाएगा 0 and this is 6. Now next element to be relaxed is 0, तो कौन रिलैक्स होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट इज G, तो G से हमें केवल D देखना है, G से D है क्या, G से D नो है, ओके, सो नो चेंज, ओनली 6 is there. Now next element to be relaxed is this 6 means this D, ओके, तो हम देखें अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो है सभी का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ए से ए पे 0 है, 1 पे B है, C का देखिए 3 है, लाइक दिस है ना, और अगर D का देखते हैं, सो D 6 कहाँ से आ रहा है, 1 देन 2, 1 2 3, 3 - 5 is -2 and no 1 2 3, 3 and 3 6, this way है ना, एंड E पे देखते हैं तो 1 - 3 is -2, ओके,
एंड एच पे कहाँ से आ रहे हैं, लाइक दिस वे। तो 1 2 3, 3 माइनस 5 इज -2। ओके, एंड जी पे कहाँ से आ रहे हैं, 0, सो 1 माइनस 3 इज -2 प्लस 2 इज 0, लाइक दिस। जी पे कहाँ से आ रहा है, 0, सो जी पे 0 आपका आएगा 1 2 3, 3 minus 5 is -2, and -2 plus not -2 and plus from here 1 minus 3 is -2, -2 and plus 2 is 0, and 0 uh, from here. Okay, from here I think we are coming from here. So 1 and 2 3, 3 and uh, plus 3 is 6, 6 plus 2 must be 8. So from where we are coming, g is 0, g0 कहाँ हुआ, यहाँ पे। तो g0 हुआ, तो ये कहाँ से आ रहे थे हम, h से, h टू g। ओके, h टू g, h कहाँ है, दिस। h से रिलैक्स किया, h is this one, so g must be 3 only, no change है ना, g must be 3 here, g must be 3। okay, and next element is what, 6, so g is 3, g is 3 only। okay, तो 3 तो easily you can come from this side, uh, 1 minus 3 minus 2 plus 2 0 plus 6, like this है ना। so all the things you are getting using Dijkstra's algorithm, so all the shortest distance, that's why the answer is what, all। मीन्स ये पूछा था कि आप ए वर्टेक्स से कहाँ कहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर किसी का नहीं कर पाते तो वो आंसर उसके अकॉर्डिंग होता है, अदरवाइज वी गेट ऑल ऑफ थिंग। Okay, so finally we are at the end of this lecture and hope you enjoyed the Dijkstra's algorithm, which is basically used to find the shortest path, single source shortest path. And in next class we will see Bellman-Ford algorithm, which is also used for single source shortest path. And specifically Dijkstra's algorithm cannot handle negative weight cycle, negative age weight cycle, but Bellman-Ford algorithm is capable for doing that. So we will see in next class. uh, and if you are learning from these videos, then like, subscribe and share this channel with your learning community so that other will also get benefited by the same. Happy learning to all of you. Stay safe.